Hello class 11th. Today this is the fourth part we are discussing of chapter 3. Three forms of public sector enterprises: departmental undertakings, statutory corporation and government company. We have discussed in our previous videos. Now today two small topics are left in this chapter: changing role of public sector and public sector reforms. And after that this chapter will get over because lot of topics are deleted from this chapter, which I told you when I started this chapter. So only two small topics we will cover. First is changing role of public sector. See, when India got independence from British rule, it had a lot of challenges before it. It had a challenge of infrastructural development, basic infrastructural facilities it had to provide to its citizens, Indian government. Okay, infrastructural like communication, transport, electricity, iron and steel. So, a lot of challenges it had in front of it. So, public sector played an important role in providing all these services, all these facilities to common people. So public sector basically in India was created to achieve two types of objectives, that is to speed up the economic growth and to achieve a more equitable distribution of income and wealth among different sections of society. Because when all the economic transactions are in the hands of private sector, the distribution of income and wealth will not be equal among different sections. ठीक है, उसमें जब प्राइवेट ओनरशिप ही होगी इकोनॉमी में, पब्लिक सेक्टर को कुछ भी राइट नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, पुअर और भी ज़्यादा पुअर होते जाएंगे और रिच और भी ज़्यादा रिच होते जाएंगे. तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता. तो जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए पब्लिक सेक्टर को बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना था. तो इसीलिए पब्लिक सेक्टर ने कुछ जो मेन जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करने का टास्क था वो अपने अंडर लिया. ओके, बिकॉज इट नीड्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट. ओके, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस India suffered from acute shortage of heavy industries such as transport, communication, electricity generation, iron and steel, oil refineries, heavy engineering, etc. So because of huge investment requirement and long gestation period means जहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट मिलने तक मीन्स बिजनेस एक्टिविटीज़ स्टार्ट होने तक और उसके बाद प्रॉफिट स्टार्ट होना, तो इसमें बहुत बड़ा टाइम लग जाता है. ऐसा नहीं है कि आज कैपिटल इन्वेस्टमेंट करी, आज फर्नीचर ख़रीदा और बिजनेस कल से ही प्रॉफिट देने लगे, ऐसा नहीं होता. सो such heavy machineries, heavy infrastructural business needs long gestation period. Not needs, they have long gestation period. Okay, so private sector was not willing to enter these areas. So the duty of development of basic infrastructure was assigned to public sector, which it discharged quite efficiently. Now let's talk about regional balance. Earlier, private sector was hesitant to establish industries in backward or remote areas due to lack of infrastructure. Backward areas में infrastructure, water, transport,
बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती, और बिज़नेस करने के लिए, कोई भी यूनिट एस्टेब्लिश करने के लिए, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए ये सारी फैसिलिटीज़ होना ज़रूरी है. सो दे do not take interest in establishing industries in backward or remote areas due to lack of infrastructure. So to provide employment to the people and to accurate the economic development of backward areas, many new industries were set up by government in these areas. So government took this initiative. Then economies of scale means large scale production. In certain industries like electric power plants, natural gas, petroleum, etc., huge capital and large base are required. Large base means a big plant. Okay, and for private sector it is very difficult to establish very huge plant. Okay, because large scale production it has its own benefit. लार्ज स्केल प्रोडक्शन के क्या होते हैं बेनिफिट मिलते ही हैं, वो उसके इकोनॉमीज ऑफ स्केल का उसको बेनिफिट मिल जाता है. एंड सच एरियाज वर टेकन अप बाय पब्लिक सेक्टर. सो इन एरियाज में पब्लिक सेक्टर ने इन्वेस्ट किया. देन restricting economics concentration. Only few industrial houses in private sector had invested at large scale. टाटा, बिरला, ये जो बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस थे केवल यही रिस्क ले सकते थे उस समय. ओके, तो उससे क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल इन फ्यू हैंड्स. ओके, एज अ रिजल्ट मोनोपोली इंक्रीज्ड एंड लीड्स टू इनइक्वालिटी ऑफ इनकम. To stop such practices, industries were established in public sector so that large scale division of income and money among workers and labor is done. Okay, so public sector ने इस वजह से भी अपने अंडर में, अपनी ओनरशिप में एंटरप्राइजेस इस्टेब्लिश किए ताकि इकोनॉमिक कंसंट्रेशन ना हो सके. देन लास्ट पॉइंट इज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. मीन्स इम्पोर्ट को भी रिड्यूस करना था बिकॉज इम्पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे. एंड अ कंट्री इकोनॉमिक कंडीशन कैन नॉट बी कंसिडर्ड गुड व्हेन इट्स इम्पोर्ट्स आर हायर देन इट्स एक्सपोर्ट्स. सो दैट ऑल्सो was a big challenge. So firstly, public enterprises were established in production of capital equipments which were earlier imported from other countries, and several enterprises were also established to promote export of goods. It increases foreign currency reserve a lot. ठीक है, very important role was assigned to public sector, but its performance was far from satisfactory, which forced government to rethinking on public enterprises. ठीक है, पब्लिक सेक्टर ने बहुत सारे जो सेक्टर हैं अपने अंडर में ले लिए, बहुत सारे सेक्टर अपने ओनरशिप में इस्टेब्लिश किए, लेकिन केवल इससे बात थोड़ी बन जाएगी. ठीक है, हालांकि बहुत अच्छा उसका ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा था कि इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना था, इंपोर्ट को कम करना था, फॉरेन करेंसी ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व रखने थे. बट वाकई में पब्लिक सेक्टर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, उसकी परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, और इसीलिए पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स हुए, है ना. जब किसी सेक्टर में सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं होती है तो फिर वहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस किए जाते हैं, और फिर यही जो चीज़ है वो पब्लिक सेक्टर में भी हुई कि वहाँ पे भी रिफॉर्म्स हुए. ओके, सो इन द इंडस्ट्रियल, और वो ही रिफॉर्म्स क्या हैं जो 1991 में रिफ्लेक्ट होते हैं.
और वो सबसे जो बिगेस्ट चेंज जो आया था इंडियन इकोनॉमिक जो कंडीशंस में, दैट LPQ से जो पॉलिसी थी वो LPG पे आई थी. ओके, LPQ का मीनिंग था लाइसेंसिंग, परमिट्स एंड कोटा. Q फॉर कोटा. ठीक है, कोटा मतलब कोई भी अगर एंटरप्राइज एस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए लाइसेंसिंग और बहुत सारे परमिट्स लेनी होती थी, है ना, गवर्नमेंट से. और उसमें भी क्या था, जैसे इंपोर्ट करना है तो उसके लिए कोटा फिक्स था कि इस इतने पर्टिकुलर एक लिमिट है, उससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते या इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते. तो वो एक कोटा फिक्स था. तो वो LPQ पॉलिसी की बजाय जब 91 के रिफॉर्म्स हुए तो वो पॉलिसी कन्वर्ट हो गई वो LPG में. मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. So this was biggest change and biggest public sector reforms. Okay, so in 1991 the government of India introduced 4 major reforms. ठीक है, तो इसीलिए पब्लिक सेक्टर की जो एंटरप्राइजेस whose performance was not so satisfactory, some reforms were done. उसमें कुछ स्टेप्स लिए गए. वो क्या थे? रिडक्शन इन नंबर ऑफ बिजनेस रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर from 17 to 8 and to 3 only in 2001. पहले पब्लिक सेक्टर के लिए जो बिजनेस की रिजर्व थे कि 17 ऐसे बिजनेस थे जो कि पब्लिक सेक्टर के लिए वो रिजर्व किए हुए थे, यानी कि उनमें प्राइवेट सेक्टर बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं कर सकता था कोई भी. ठीक है, तो उसको फिर रिड्यूस किया गया 8 तक. बट 8 के बाद और उसको रिड्यूस कर दिया गया. ओनली 3 सेक्टर्स वर केप्ट रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर एंड दीज वर डिफेंस, okay, then atomic energy, okay, or nuclear plant we can say, and third one is railway. Okay, so only these sectors were kept for public sector and rest all were opened for private sectors. Okay, second important reform was memorandum of understanding. It is very important, children. MOU. Now also, if you have noticed somewhere sometimes, then this term generally comes in newspapers when government offices make some agreements from other offices or private parties where they are given some more autonomy, means more freedom. So in this system, public sector is provided with greater autonomy. Autonomy means freedom, and government lays down performance target. See, performance target for the management and gives greater autonomy. Okay, so these units to hold the management accountable for the result. यानी कि उनको फ्रीडम ज़्यादा है कि वो काम करना है. उनको टारगेट्स दे दी जाते हैं दैट दिस ईयर दिस प्रॉफिट विल बी दिस मच और द प्रोडक्शन विल बी ऑफ 1000 यूनिट्स और 20,000 यूनिट्स और 25,000 यूनिट्स. इस तरह के उनको टारगेट्स दे दी जाते हैं, बट काम वो अपने ढंग से करेंगे. यहाँ पे उनको ऑटोनॉमी मिल गई, काम करने की फ्रीडम मिल गई. तो उन गवर्नमेंट ऑफिशियल के बीच में गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होते हैं, गवर्नमेंट जो उस डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट होता है, वो उनको ग्रेटर ऑटोनॉमी प्रोवाइड करवाई जाती है. और वो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके बीच में एक MOU साइन होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. एक एग्रीमेंट साइन होता है अंडर विच मैनेजमेंट is provided greater autonomy and they are hold accountable for the results. कि जो भी रिज़ल्ट आएंगे, अगर
पुअर रिजल्ट आते हैं, अगर वो जो टारगेट्स अचीव नहीं कर पाते, देन दे देमसेल्व्स वुड बी अकाउंटेबल, दे देमसेल्व्स वुड बी आंसरेबल एंड दे देमसेल्व्स वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर रिजल्ट। ठीक है, वो किसी और को उसके लिए वो ब्लेम नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट स्टेप विच वॉज टेकन, दैट इज disinvestment. Investment means to invest money, but disinvestment मतलब जो मनी इन्वेस्ट की है उसको रिड्यूस करना। ओके, दैट मीन्स इक्विटी शेयर्स ऑफ सम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज वर सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक। जो पब्लिक सेक्टर के जो इक्विटी शेयर्स थे उसको सेल आउट किया गया, किसको? प्राइवेट सेक्टर को। मतलब कुछ परसेंट जो पार्ट है उसको प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया, सेल कर दिया गया, और या फिर कॉमन पब्लिक को। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट दिस वुड लीड टू इम्प्रूव्ड मैनेजरियल परफॉर्मेंस एंड बेटर फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ठीक है, उससे क्या हुआ, एक तो पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल था, और जहाँ पे गवर्नमेंट अगर सपोज 51% गवर्नमेंट के हाथ में है बट 49% तो प्राइवेट पीपल के पास है, तो प्राइवेट जो सेक्टर जो उस गवर्नमेंट कंपनी में इन्वॉल्व है वो अपनी मनी को ऐसे वेस्ट नहीं जाने देगा। तो वहाँ पे उस एंटरप्राइज में थोड़ा सा फाइनेंशियल डिसिप्लिन इम्प्रूव होगा, बिकॉज 49% money is invested by private people. Okay, so they will make maximum use of their money. Okay, so वहाँ पे फाइनेंशियल डिसिप्लिन इम्प्रूव होगा, उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। तो डिसइन्वेस्टमेंट वॉज ऑल्सो अ मेजर स्टेप एंड मेजर पब्लिक रिफॉर्म। देन रीस्ट्रक्चरल एंड रिवाइवल। अब रीस्ट्रक्चर और रिवाइवल किसको किया गया, मीन्स वापस से जिंदा करना। ठीक है, जो डेड हो गई थी या जैसे जो सिक यूनिट्स हो गई थी, जो सिक यूनिट्स मीन्स विच आर नॉट अर्निंग एनी प्रॉफिट फ्रॉम मेनी ईयर्स। ओके, कोई एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कि बहुत सारे पिछले 3-4-5 सालों से लॉस ही हुए जा रहा है, सो वो सिक यूनिट हो जाएगा। ठीक है, हम भी अगर बीमार रहते जाएं तो हम भी, ठीक है, एक बार हो गए 2 बार हो गए, लेकिन कंटिन्यू अगर बीमार हो गए तो हम फिर सिक हो जाएंगे, तो ऐसे ही वो यूनिट्स भी सिक हो जाएंगी। सो ऑल पब्लिक सेक्टर सिक यूनिट्स वर रेफर्ड टू BIFR। रेफर्ड नहीं है, ये ट्रांसफर्ड है। ओके, जो भी सिक यूनिट्स थी तो उनको लुक आफ्टर करने के लिए उनको BIFR को ट्रांसफ़र कर दिया गया, यानी कि एक बोर्ड बना दिया गया जो कि जो इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन पे ध्यान देगा। जिन यूनिट्स को BIFR को ट्रांसफ़र किया गया फॉर देयर रीस्ट्रक्चर एंड रिवाइवल, तो वो उसमें वापस से जान डाल देगा सिक यूनिट्स में। वो देखेगा कि सिक किस वजह से हुई है। हो सकता है मशीन्स वहाँ पे अपडेटेड ना हो, मशीन्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ना हो, या बहुत ही ज़्यादा डैमेज्ड मशीन्स हों। ओके, ये हो सकता है, या हो सकता है कुछ इंटरनल, कुछ ह्यूमन कॉज की वजह से प्रॉब्लम्स आई हों, तो वो सिक यूनिट्स को ठीक करने की कोशिश करता था वो BIFR। ओके, एंड यूनिट्स विच वर पोटेंशियली वाइएबल, मतलब जिसमें पोटेंशियल है कि वो वापस वो ठीक हो सकती हैं, वर रीस्ट्रक्चर्ड एंड विच कुड नॉट बी रिवाइव्ड है एक्चुअली, रिवाइव्ड वर क्लोज्ड डाउन बाय द बोर्ड। ठीक है, जो वाइएबल थी, जो ठीक होने लायक थी, उनको तो रीस्ट्रक्चर किया गया, और जो ठीक होने लायक नहीं थी उनको क्लोज कर दिया गया। Okay, so this was also a major reform. Okay, so here our chapter ends. Okay, now we will discuss some case studies in our next video. Hope you would have got very well this chapter.
Thank you. Have a nice day.